This one is Kisra Nagar Bhansar office. Once again, I am your Vicky, and now we are going to start the new destination. The destination name is Swargadwari Temple, and this is the way of Chandrauta. After cross the border, Bandi, we see this way, and this way is going to Chandrauta, and after Chandrauta we will visit the Bhaluwan place. And the way is so much beautiful and attractive way. You just see the natural view given by God, and this is the way. It's so much attractive, and you will visit you also. This is so much attractive way. Lots of Indians are visit here with the help of your bike and car, and also available the taxis and local private buses. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. So just see and watch the way of Bhaluwan and how beautiful way. You just comment it in my comment section box. So just watch the way, and I will tell about the point to point. When the main destination will come, I will tell which destination is there. Okay, just see and watch. So if you want to visit Swargadwari Prabhunath Mandir, I will tell you from the Basti city, because I am living in Basti city. So from Basti to Barni border is approx 95 km, and after that from the Kisra Nagar, after the cross the border, the Kisra Nagar will come, and from Kisra Nagar, from the Kisra Nagar to Chandrauta to just between 25 km. Distance is 43 km. From the Chandrauta to Bhaluwan, and after 43 km you just will maybe 105 km, 17 km to Bhingri, and the place name is Bhingri. So now we are coming on the new place. So this place is Bhaluwan. When you visit here, you just feel that you are in the Kashmir, and this place is Bhaluwan. And after Bhaluwan, you just take turn right. When you turn right, you will just go Jaspur. The Jaspur is near about 43 km from the Bhaluwan. So this is Bhaluwan place, and after Bhaluwan we will go Jaspur. Just turn right, and this way is going Jaspur, and after Jaspur we will visit the Bhingri place. On the place of Bhingri there is a lots of hotel and restaurant. There you can stay for the night and day if you want, and take rest also.
रास्ते में अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ती हुई, और कभी कभी रास्ता नहीं दिख रहा है, क्लियरिटी थोड़ी कम है। अभी हम लोग वाइपर ऑन करेंगे, वाइपर ऑन करेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी दिखेगी, क्योंकि जो कैमरा है वो वाटर को कवर कर रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा बाहर। हम लोग ऐसे जगह पे पहुंच गए कि जहाँ की जो मिट्टी थी वो बिल्कुल रेड टाइप की दिख रही थी, तो हमको बहुत अच्छा लगा। आप भी देख सकते हैं रास्ता बहुत ही सुंदर। देखते रहिए मनोहर दृश्य, और कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस्ती से बढ़नी 90 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर के बाद 25 किलोमीटर आप चंद्रौटा जाएंगे, और चंद्रौटा से भालूवान जो है वह 105 किलोमीटर है, और फिर भालूवान से 43 किलोमीटर जसपुर, एंड 43 किलोमीटर के बाद आप जो है 17 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भिंगरी नाम का प्लेस। ठीक है, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पर आपको होटल और खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। वहाँ से आप 13 किलोमीटर और जाएंगे तो आप स्वर्गद्वारी प्लेस पे पहुँचेंगे। वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को खड़ा करेंगे और फिर मंदिर के लिए चढ़ाई कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए रास्ते कितना अच्छा और कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर, और बहुत सारे इंडियन यहाँ पर आते हैं सिर्फ घूमने के लिए। और जो अभी तो रास्ते में बारिश ठंडी का आनंद मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। और घूमिए, देखिए कितना सुंदर, और देखिए आपको नज़ारा ठंडी बिल्कुल 100% लगेगी। कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगा, पहुँचेंगे। और जब आप गर्मी के दिनों में आ रहे हैं तो जाते हैं, हम लोगों को बर्फ़ नहीं मिलेगा लेकिन ठंडी मिलेगी ज़रूर। तो लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तो लगने हैं। रास्ते में आपको लाल मिट्टी देखने को बहुत ढेर सारा मिलेगा, और हम भी देख रहे हैं। देखिए, आप भी देखिए, जो साइड की जो मिट्टियाँ हैं वो बिल्कुल लाल रेड कलर की, रेड टाइप की हैं, रेड कलर नहीं है। और आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको बिल्कुल कश्मीर की फीलिंग आएगी। देखते रहिए आप। और ये देखिए रास्ता कटिंग, बीच में रास्ते कुछ बहुत डेंजर, बचा के चलिए। और जो भी चलाने वाला हो वह बहुत कुशल होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं। पहाड़ी रास्तों का आनंद लीजिए और ड्राइव स्लोली कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाइए, भले ही 1-2 घंटे ज़्यादा लगे, कोई बात नहीं। एंड भिंगरी से जो स्वर्गद्वारी का जो रास्ता है वो 13 किलोमीटर जो रास्ता है वो बिल्कुल पहाड़ियों से भरा हुआ है और बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन अब रास्ता बन चुका है। यहाँ पर आपको पथरीले मार्ग से होकर जाना पड़ेगा, और ये रास्ता काफ़ी घुमावदार है और ख़तरनाक है। एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ कहीं नदी तो कहीं खाई दिखाई देती है, लेकिन मनोरम दृश्यों को की छटा ही बहुत ही अच्छी होती है। दूर बर्फ़ से ढकी चोटियाँ आपको दिखाई देंगी, और लगातार सनाली भिंगरी के स्वर्गद्वारी के इन खतरनाक रास्तों से जाना पसंद भी करते हैं।
क्योंकि आजकल के जो हमारे पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो ऐसे रास्ते पे जाना पसंद करते हैं जैसे हम अभी चल रहे हैं। आप ये रास्ता अभी देखते रहिएगा। और अभी हम लोग भिंगरी से स्वर्गद्वारी के लिए निकल रहे हैं। और ये रास्ता वही रास्ता है। अब ये रास्ता बन चुका है, लेकिन बहुत ही घुमावदार है और बिल्कुल स्लोली ड्राइव कीजिए। और कुछ लोग तो 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर बिल्कुल पैदल ही चलते हैं और अपने पीठों पे सामान लाद कर चलते हैं, जैसे लगता है उनको थकान ही नहीं लगता, क्योंकि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। क्योंकि जो स्वर्गद्वारी जो मंदिर है वो भगवान शिव का ही मंदिर है। और आप भी एक बार ज़रूर आइए, इस मंदिर के दर्शन कीजिए और ठंडी का आनंद भी लीजिए। रास्ते में आपको लोग आराम करते हुए दिख रहे हैं। और ये बिल्कुल भिंगरी से स्वर्गद्वारी जो 13 किलोमीटर का चढ़ाई रास्ता है, ये वही रास्ता है। रास्ता बन चुका है, लेकिन पहाड़ी रास्ता है तो बारिश के दिनों में जैसा बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, वैसे ही है। बस आप आराम से धीरे धीरे चलाते रहिए और अपनी नज़र बिल्कुल सामने रहे, क्योंकि यह पथरीला रास्ता है। आपको थोड़ा सा मौका नहीं है, जैसा कि मैदानों में होता है कि हम लोग इधर उधर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर भी पहाड़ी रास्ता है, इधर उधर जाने का मतलब आपको पता ही है क्या हो सकता है। सो देखते रहिए आप। अभी हम लोग स्वर्गद्वारी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। रास्ते में बहुत सारे लोग जाते हुए, बिल्कुल पैदल यात्रा करते हुए। ये जो 13 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो लोग पैदल ही है, कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग जाते हैं। आस्था का विषय है बिल्कुल। ये देखिए बच्चे जा रहे हैं और रास्ता बहुत खतरनाक घुमावदार रहता है, इसलिए आप बिल्कुल स्लोली चलिए और बिल्कुल देखते रहिए कि आगे से जो गाड़ियाँ आएँ उनको भी रास्ता दीजिए।
सो 13 किलोमीटर का जो ये डेस्टिनेशन था, बिल्कुल पहाड़ में घुमावदार रास्ते, अब हम लोग बिल्कुल सर्वगाड़ी पहुंचने वाले हैं। और पहुंचते ही आपको स्टैंड मिलेगा जहां पर आप अपनी गाड़ी को लगाएंगे। अभी हम भी लगा रहे हैं, आप देखते रहिए। और हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ ही क्षणों में। और ये पहुंच गए हैं हम लोग, आप देखते रहिए। ये है डेस्टिनेशन, यहाँ पर लिखा है सर्वगाड़ी। बिल्कुल आपके लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ने के बाद हम लोग लेफ्ट घूमेंगे, रास्ता सर्वगाड़ी के लिए जाएगा। और ये देखिए आपका हमने गाड़ी लगा लिया है। गाड़ी लगाने के बाद आप देखिए सर्वगाड़ी का गेट। यहाँ पर आप गाड़ी खड़ा करने के बाद आपको लगभग 750 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है जो गेट है, मेन गेट। यहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को लगा सकते हैं। गाड़ी लगाने के बाद आप एक स्लिप ले लीजिएगा, पर्ची। और पर्ची लेने के बाद आप अपनी चढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ये देखिए स्वर्गद्वारी आश्रम प्रवेश द्वार लिखा हुआ, बहुत ही मनोहर, बहुत ही मन को मोहने वाला गेट। और यहाँ पर लोग, मेरे साथ हमारी सिस्टर और हमारे जीजा जी भी आए हुए थे, और हमारे भांजे एंड भांजी ये भी आई हुई हैं। अब वो सो देखिए यहाँ पर जी कुछ लिखा हुआ है, ये श्लोक है बिल्कुल। और इस श्लोक को पढ़ने के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। बिल्कुल आपके लिए ही वीडियो बन रहा है कि आप लोग दर्शन कीजिए घर बैठे ही। और ये सीढ़ियाँ जो सीधे स्वर्गद्वारी मेन मंदिर पे ले जाती हैं, ये लगभग 750 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। 750 सीढ़ियों को चढ़ने में लगभग 25 मिनट। और जैसा आपका स्पीड और कुछ वो जो थकान लगता है तो रास्ते में हम रुक भी सकते हैं। चलो। तो हमारा जो गांजा है वो सबसे तेज भागता हुआ सबसे आगे। हम लोग तो थक जा रहे हैं, लेकिन वो थक रहा है। देखिए चश्मा लगा कर भाग रहा है, बिल्कुल आगे की तरफ भागता हुआ, और बहुत ही खुश, क्योंकि अब उसको ठंडा लग रहा है धीरे धीरे। अभी ऊपर जाने के बाद आपको और बिल्कुल ठंडा लगेगा कि गर्मी के दिनों में ठंड कहाँ से आ गई। बस सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए, बीच बीच में आराम करते रहिए अगर आपको थकान लग रही हो तो। तो बीच बीच में आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी है। और अब हम लोग बिल्कुल मेन मंदिर के गेट पे पहुंचने वाले हैं, जो बिल्कुल पहाड़ियों पर, बिल्कुल हिल टॉप पर बसा हुआ है। और इस गेट के अंदर ही आपको मंदिर के दर्शन होंगे। और ये देखिए छोटी सी बच्ची। चलिए अंदर चलते हैं अब मेन गेट के अंदर। ये अंदर से बिल्कुल नज़ारा देखिए। फिर आ गया मेरा भांजा, और ये देखिए जीजा जी मुआयना करते हुए। और यहाँ पर यात्री लोग भी रात को विश्राम कर सकते हैं, जो यात्री लोग आए हुए हैं अपनी थकान को दूर करते हुए।
अब थोड़ी थोड़ी ठंड हवाएं चल रही हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ का नज़ारा। अब यहाँ पर आपको पानी और खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। अगर जो आपको नाइट में यहाँ विश्राम करना है तो आप रह भी सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे इन नाइट यू कैन जस्ट स्टे हियर, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ द कोल्ड विंड इज़ flowing now. And lots of people are here, they are taking rest and doing the other activities. This is the help center, you can visit here, and this is written there, the Swargdwari Tapobhumi, and this is the help center or the any information if you want. Now we are going to the main temple, just see and watch. And this is the sun, look the sun. और ये कोई कुंड है जहाँ पर लोग पानी लेते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ का पानी पवित्र माना जाता है। क्योंकि देखिए बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं, और ये अभी ये मंदिर का निर्माण हो रहा है और मेन मंदिर साइड में है, अभी उसके भी दर्शन कराते हैं आपको, देखते रहिए। ये देखिए यहाँ पर लोग जो फूल चढ़ाना हो, अगरबत्ती बारना हो, कुछ फ़ोटो ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं, कोल्ड विंड इज़ फ्लोइंग नाउ। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये जो सामने है वही मेन मंदिर है, यहीं पे लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर प्रसाद मिलता है। ये देखिए हमारे पीछे बिल्कुल ब्लैंकेट ओढ़े हुए कुछ लोग शाल ओढ़े हुए आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि हाँ ठंडी यहाँ पर लग रही है। ये भी धर्मशाला है, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन लोग स्टे वहीं नीचे ही करते हैं, भिंगरी नामक स्थान पर। आपकापन, आप यहाँ भी रह सकते हैं। लोग यहाँ पर प्रसाद और जो भी आपको कुछ बनाना हो, जैसी आपकी मनोकामना होती है, उसको यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। चलिए हम भी कुछ फ़ोटो लेते हैं जहाँ पर लिखा है स्वर्गद्वारी। ये देखिए कुछ फ़ोटोज़। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं कि मौसम ख़राब हो रहा है, बिल्कुल शीत पड़ रहा है जैसा लग रहा है। ये ठंड आ गया है, लेकिन जब हम लोग अपने प्लेस पे पहुंचेंगे इंडिया में एक दिन के बाद, तब आपको लगेगा कि हाँ कितनी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ठंड है। एक बार फिर देख लीजिए आप मेन गेट को, जो मेन टेंपल का गेट है। चलिए आप नीचे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सिस्टर कुछ फ़ोटो लेते हैं।
और ये हमारे फ़ोटोज़। Staring down the barrel, waiting for the final gates to open. ठंड का एहसास बिल्कुल, इसलिए हम लोग वहाँ से चल दिए हैं नीचे की तरफ। आपको भी दिख रहा होगा सामने मौसम ख़राब हो रहा है, बिल्कुल धुंध छा रही है। आपको लेफ़्ट की तरफ से सीढ़ियों से जाना है और राइट की तरफ से आना है। जैसे आप अपनी कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से आते हैं, उसी तरफ से। और यहाँ पर घोड़े की भी व्यवस्था है, अगर जो लोग आना चाहें, जिन लोग चलने में कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए स्वर्गद्वारी स्वास्थ्य चौकी भी है, जहाँ पर आप अपने हेल्थ की जाँच भी करवा सकते हैं। और ये देखिए बाजा बजाते हुए एक बाबा जी। पहाड़ों से देखिए हेल्प के लिए खच्चर ले जाता हूँ। ये देखिए कुछ लोग आते हुए जो अपने सिर पर कुछ बांधे हुए हैं। बहुत ये देखिए हमारे भांजा और भांजी लोग घोड़े की सवारी करते हुए। हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर वहीं पर आ गए हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे, क्योंकि नाइट भी होने वाला है और मौसम भी ख़राब है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग निकलेंगे नीचे की तरफ, देखते रहिए। आते आते रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, 100% है। फ़ोटोज़ अगेन। तो हम लोग चल रहे हैं रिटर्न उसी स्थान पर, कुछ फ़ोटोज़ देख लीजिए सूरज भगवान और मंदिर के। कुछ रास्ते की फ़ोटो जब हम लोग स्वर्गद्वारी से नीचे आते हुए। यह होटल जहाँ पर हम लोग रुके थे, इसी होटल में हम लोग रुके। ये जो मिडिल में बैठे हैं वही उनके ओनर हैं, और इन्होंने हम लोगों को 600 रुपये में 2 रूम दिया, बहुत ही कम प्राइस में। और ये वहीं से लिया गया फ़ोटो है, जहाँ पर हम लोग रुके थे उसी रूम से आउटसाइड। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये स्वर्गद्वारी का फ़ोटो जब हम लोग वहाँ से वापस हो रहे थे। और ये वहाँ पर जहाँ हम लोग रुके थे, ये वहीं का रेस्टोरेंट है। ये रास्ते का व्यू जब हम लोग स्वर्गद्वारी से नीचे आते हुए, क्योंकि नाइट हो गया था और रास्ता और ही डेंजर, अंधेरा छा रहा था। रास्ते का व्यू देखिए नाइट का। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final
और दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग व्यू आफ्टर द स्टे, द नेक्स्ट डे विल कम, दिस इज़ द व्यू ऑफ दैट डे। अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं और ये रास्ते का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी आइए इन्हीं रास्तों से, इन्हीं गलियारों में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग एक नदी आया जहाँ पर अभी हम लोग कुछ फ़ोटो लेंगे, आप भी देखते रहिए। अभी हम लोग फ़ोटो लेंगे, आप भी देखिए कितना अच्छा व्यू। और आपको यह पूरा व्यू कैसा लगा, मंदिर कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रास्ते का व्यू कैसा लगा। और हमारे जो नेपाल के भाई बहन हैं वो भी बहुत ही अच्छे, उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर जाने के बाद बहुत ही मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। हाँ, कुछ छोटी मोटी कमियाँ तो रहती हैं दोनों की तरफ से, चाहे वो यहाँ हो चाहे वहाँ हो, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगा वहाँ का व्यू। जो वहाँ के लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद एंड थैंक यू। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to और ये रास्ते के कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोस जो लिए गए नदी के किनारे। सो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हाउ यू फील, यू कैन जस्ट कमेंट इट on my comment section box and give your feedback and like and subscribe this channel for the better video. Thank you for watching this video.